Hmm. So what is the complexity for worst case? Suppose number of element are n. Big O of n. Sir, big O of n. Big O of n. That means how many number of element are there? That much searches we have to do. So we will use big O of n. Now in average cases, how many searches we have to do? Hello. So big O of so Big- Hmm? big theta of n by 2. क्लियर हो? सही है, ठीक है। देखो, देयर इज एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ वी विल फाइंड इन दिस केस, के देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एलिमेंट इज इटसेल्फ आवर सर्चिंग एलिमेंट। पहला एलिमेंट ही अपने सर्चिंग एलिमेंट है, दैट मींस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज 1। अगर सेकंड एलिमेंट इज अवर सर्चिंग एलिमेंट, मतलब सेकंड पोजीशन पे जो सर्च करना है, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्चेस वी हैव टू डू, 2 नंबर ऑफ सर्चेस। अगर थर्ड एलिमेंट अपना सर्चिंग एलिमेंट है, देन हाउ मेनी सर्चेस वी हैव टू मेक, 3 सर्चेस। इफ फोर्थ पे है, इफ एन नंबर पे अपना एलिमेंट है जो अपन वी आर सर्चिंग फॉर, तो वो हो जाएगा एन नंबर ऑफ सर्चेस वी हैव टू डू इन दैट केस। सो इट इज 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + n। तो इसका एपी फॉर्म में आ गया। एपी कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ द एपी, देन वी विल गेट दिस n × n + 1/2। नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, टोटल से डिवाइड बाय नंबर से। तो टोटल नंबर से जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट अरे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आर n, सो इट इज डिवाइडेड बाय n, n से n कट गया, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इज n + 1/2। And now we can it is constant, so 1 and 2 can be neglected and our complexity will become on। clear है इतना? हेलो। Yes, sir. so now Yes. it is clear कि on complexity in the case of burst and average case, in case of linear search, and in best case it is ω1। now suppose, ये तो बात हो गई, ये तो बात कब की हुई, when we was performing, ये बात कब की हुई, it is when we are performing the search and our search is successful, मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट है इस अरे में, दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस अरे। इफ अब मैं बात करता हूं उस केस की, इफ सर्चिंग एलिमेंट, सपोज आई वांट टू सर्च 25, तो 25 क्या इस अरे में है? No, sir. No, sir. नहीं है। तो एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सर्चेस यू हैव टू परफॉर्म? Sir, n searches. एन सर्चेस परफॉर्म होगा, बेस्ट केस हो चाहे बस्ट केस हो चाहे एवरेज केस हो। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. फॉर अनसक्सेसफुल सर्च। ये रिमूव नहीं होता है क्या? होता है सर, स्क्रीन पे होगा, वहाँ पे कैसे? इरेजर भी होगा और अंडू अच्छा, भी होगा सर इरेजर आपके। होगा। एनो अंडो कहाँ से होता है? यहीं से होता है क्या? नहीं। एक मिनट, इरेजर रिमोट कंट्रोल सिक्योरिटी स्टॉप वीडियो, पता नहीं, एनोट ड्रो स्पॉट है इरेजर, फाइन, ठीक है। लेकिन इट इज टेकिंग टाइम, इरेजर इज टेकिंग वेरी मच टाइम। हाँ, नाउ वी कैन स्टार्ट अगेन।
So now second case. So linear search program you can make, I think so. Now you can make program for linear search or don't know how to make. Next thing is that next divide and conquer. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Next strategy I am talking about for design analysis of algorithm, divide and conquer algorithms. There are some algorithms which are very big algorithm. That means they are using the concept of divide and conquer algorithm. That means suppose our algorithm is big, then we are dividing that algorithm into two parts, two smaller part, and again if that smaller part is also bigger part, then again that part is being further divided into its subparts. Clear है? Hello. Yes, sir. Divide and Repeat that conquer. again, sir. Divide and conquer में क्या होता है? First of all, if our algorithm is big या function is big, we are dividing that into if problem is big, suppose we want to solve the problem and that problem is big, then we are dividing that problem into sub problems. आधा आधा में डिवाइड कर दिया सब प्रॉब्लम्स. क्लियर है? Yes, sir. Then आधा बांट लिया. sub program, the sub program to get solution by calling recursively of sub program. मतलब सब प्रोग्राम के सॉल्यूशन रिकर्सिवली सब प्रोग्राम को कॉल करने से मिल जाते हैं. We are finding the solution of sub problem by recursively calling that sub problem. Or next come combine. Then when I get the solution, a small solution, then we have to combine all the solution and get the final solution. So this is strategy of divide and conquer. Suppose there is PQ problem. Suppose problem is PQ. In divide and conquer, suppose problem is PQ. Now we want to, it is a big problem. We want to divide this problem into two halves. Then one problem I have divided from P to M and another problem from M plus 1 to Q. Suppose PQ is a big problem. So in half I have divided in middle. So one sub problem is P to M. Next sub problem is M plus 1 to Q. So in this way it is working. Now, so these are application of DAG. Where dynamic. These are application of DAG. Divide and conquer algorithm. Finding maximum and minimum, binary search, power of element, merge sort, quick sort. In all these selection procedure, station matrix multiplication. In these all algorithms, we use the application known as we use the strategy known as divide and conquer algorithm. So now I want to say that. So now binary search you know or don't know? Hello. Hello. Yes, sir. You know binary search. Yes, sir. What is inside binary search? How we solve the problem? Sir, binary search the basically works on only sorted array. Means हाँ, our array should be sorted first. Like if it is not, then we have to use any sorting technique to sort it. Then, sir, right. it works in same principle, sir. In that we divide into two halves, sir. If Hmm. it is our middle element, then we directly compare to search element and we get our what is we have to search. But if it is not, then we do that if it's less than, then we exclude the right part and then again divide and then we do the searching again, and basically we need to find the middle part of the Right, element. right. So same thing I want to explain over here. I think so you already know. So we can explain here. Annotation, annotable. ठीक है. Suppose our array is there. Array is there. One array is there. उसका है टू, मान लो सॉर्टेड वे में होना चाहिए अरे. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 110.
कॉमा 120. See like this it is. मान लो 2 4 6 8 10 11 और भी ले लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं. इट इज 1 थर्ड ऑर्डर में है. इट इज 2, इट इज 3, it is 4, it is 5, it is 6, 8, 9, 9, 10, 11, 12. Now next is 14, 16, 18, 20, 22, 24. ये अपना अरे मान लो ठीक है, ये वाला अपना अरे है. हाउ मेनी एलिमेंट आर इनसाइड दिस अरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Suppose 16 element are inside this array. मान लो this is an array and there are 16 elements inside this array. Suppose there are 16 elements inside this array and my searching element is the element I want to search. Suppose my, ठीक है, this is an array and my searching element is, ठीक है बाद में कर लेंगे. हाँ, तो I am saying how many number of elements are inside this array? 16 elements inside this array. That means n number of elements is inside this array. Now what is happening? Suppose now what is happening? Suppose binary search we are calling the function. तो A is an array, I is first element, मतलब index of first element, J is index of last element, and X is the element we want to search. So in this case, what is happening? First of all, we will check. एक suppose there is only one element inside this array. मान लो एक ही element अगर array में हो, तो क्या check करना पड़ते whether we have to divide it or not? Hello, hello, hello. Yes, sir. I am saying that क्या अगर सिर्फ एक एलिमेंट अरे में है तो फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा उसे या नहीं? सर एक ही एलिमेंट है तो सर क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो डायरेक्टली नहीं उसी को सर. चेक कर लेंगे, मतलब सब प्रॉब्लम में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. तो सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर. इफ आई इज इक्वल टू जे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स सेम होगा, दैट मींस सिर्फ एक एलिमेंट है अरे में. मान लो सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो आई और जे की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. क्लियर है? हेलो. यस सर. तो आई और जे की Yes, वैल्यू sir. सेम होगी इन दैट केस if only one element is inside that array. So I am saying that if I is equal to j, अगर i और j की वैल्यू मतलब फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स की वैल्यू सेम है, दैट मीन्स सिर्फ एक एलिमेंट है. if i is equal to j, तो अपन लोगों को डिवाइड तो करना नहीं है, तो फाइनली वी हैव टू चेक. मान लो एक ही एलिमेंट है तो वी कैन चेक ai क्या x के बराबर है. मान लो x सर्चिंग एलिमेंट है, क्या ai मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है अरे में, तो ओनली दैट एलिमेंट वी हैव टू सर्च वेदर दैट एलिमेंट इज इक्वल टू माय सर्चिंग एलिमेंट और नॉट, और रिटर्न कर देंगे इंडेक्स किस पोजीशन पे वो है. तो नाउ आई एम सेइंग दैट एल्स क्या करेंगे? रिटर्न -1 कर देंगे कि मुझे वो एलिमेंट पूरे अरे में मिला ही नहीं. आई एम नॉट रिसीव दैट एलिमेंट इनसाइड कंप्लीट अरे, मतलब रिटर्न -1. अगर ये केस नहीं होगा, इफ देयर इज नॉट ओनली वन एलिमेंट, एक एलिमेंट नहीं है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, इफ देयर आर मोर देन वन एलिमेंट इनसाइड दैट अरे, तो उस केस में क्या करेंगे कि एल्स में वी हैव टू फाइंड आउट कैलकुलेट द मिडिल. उस केस में क्या कैलकुलेट करेंगे? मिडिल कैलकुलेट करेंगे. मान लो देयर आर 16 एलिमेंट, तो 1 + 16 मिडिल कैसे फाइंड करते हो? हाउ यू फाइंड आउट मिडिल? हेलो. फर्स्ट पोजीशन प्लस लास्ट पोजीशन बाय 2. फर्स्ट पोजीशन प्लस लास्ट पोजीशन. मान लो मैं तो कैलकुलेट, तुम 0 से कैलकुलेट कर सकते हो, मैं तो 1 से करता हूँ. तो 1 प्लस, अगर इफ देयर आर 16 एलिमेंट तो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी? 1 होगी.
फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, 1 होगी, एंड लास्ट पोजीशन क्या होगी, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, हेलो हेलो, सर इंडेक्स की पोजीशन, मतलब इंडेक्स, जो इंडेक्स है उसका मतलब पोजीशन है, जैसे 1 है तो इंडेक्स 16 पोजीशन होगी, 16 अगर इफ देयर आर 16 एलिमेंट 1 वाला, अगर मैं पहले पोजीशन को 1 बोल रहा हूँ तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, 16 पोजीशन पे होगा। तो मिडिल कैसे निकलेगा, 1 + 16/2, मतलब पहला पोजीशन प्लस लास्ट पोजीशन डिवाइड बाई 2, तो क्या निकल जाएगा, मिडिल निकल जाएगा। डिक्शनरी में ऐसे ही करते हो ना, यू आर सीइंग द डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में करते कैसे हो, पहले बीच का पेज निकालते हो, ठीक है। नाउ यू आर चेकिंग कि तुम्हारी स्पेलिंग पहले की है इसके या बाद वाली है, तो अगर पहले की है तो यू आर चेकिंग इन द लेफ्ट साइड, इफ इट इज बाद वाली है तो देन यू आर चेकिंग इन द राइट साइड। तो सेम चीज इसमें है कि मिडिल निकाल लेंगे, मिडिल मान लो आई 1 पोजीशन पे है, ये तुम्हारा 16 है, 1 + 16/2, तो 17/2, 2 8 16, तो मतलब 8 आ गई पोजीशन, 8 पोजीशन। तो फिर देन वी आर चेकिंग, कोई छोटा ले लेते हैं यार, ये तो बहुत बड़ा हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा इसमें माउस रीडो, ठीक है, ठीक है। हाँ, नाउ आई एम सेइंग दिस, एक छोटा ले लेते हैं भाई, टाइम ओवर होने वाला है, यू कैन ज्वाइन वंस मोर, ठीक है, एक बार और ज्वाइन कर लो, फिर उसी में मैं समझा देता हूँ, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू ओवर। हेलो हेलो, 7 मिनट है, तो अगेन Yes, ज्वाइन कर sir. लो तुम लोग, यू कैन ज्वाइन अगेन, देन वी विल कंप्लीट इन दैट, ठीक है।